Hello everyone, this is Preeti Ghosh with another educational video of class 5 chapter 5 food, health and hygiene. Today we are going to discuss the exercise of this chapter. If you haven't seen the explanation of this chapter, links are given in the description box. And if you are new to my channel, do consider subscribing it and press the bell icon to get notified. Also, you can follow me on my Facebook page where I upload few interesting science experiments and activities and lot more, and the link is given in the description box. So, without further ado, let's start with today's class. Section A, choose the correct answer. In that, question number 1 says, the variety of food that contains all nutrients in the right proportion is called balanced diet. Option B is the right answer. ऐसा food जिसके अंदर सारे nutrients उसके right proportion में रहते हैं, वैसे पूरे food को क्या कहते हैं? एक balanced diet कहते हैं. Next, question number 2, carbohydrates are energy giving food, but excess amount of carbohydrates cause. कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है, बट अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर लेते हैं तो दैट विल कॉज ऑप्शन सी, दैट इज ओबेसिटी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, proteins are body building nutrients. Body building nutrients is the correct answer. Question number 4, the nutrients that provides heat and energy. इनमें से कौन सा nutrients हमें heat और energy देता है? That is option A, fats is the correct answer. Next, question number 5, oranges, grapes, carrots are rich sources of vitamins. Option C. Okay. Moving on to question number 6, scurvy is caused by the deficiency of. स्कर्वी इनमें से कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 सेज, राशि इज सफरिंग फ्रॉम गॉइटर. शी शुड बी गिवन अ डाइट रिच ऑफ. राशि जो है उसको गॉइटर की बीमारी है. अब उसको कैसा खाना देना चाहिए? मतलब हमें क्या पता है कि गॉइटर जो है इज अ मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज, किसी एक मिनरल की कमी की वजह से होता है. तो हमें उस इंसान को उसी मिनरल से भरपूर खाना देना चाहिए जिसकी उसको कमी है. सो वी नो दैट गॉइटर इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. तो राशि को कैसा डाइट देना चाहिए? दैट डाइट शुड बी रिच इन आयोडीन. ठीक है. Question number 8, jaundice is caused by bacteria. Option A is the correct answer. Clear? Question number 9, a dreaded disease caused by virus HIV that attacks the immunity system. इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि HIV वायरस के अटैक करने पे होता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है? दैट इज एड्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10, डेफिशिएंसी डिजीजेस आर कॉज ड्यू टू. डेफिशिएंसी डिजीजेस क्यों होते हैं? बिकॉज लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड की कमी की वजह से. ठीक है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Now let's move on to our next section, that is section B, give short answers. First question, why do we need food? हमें खाना क्यों चाहिए? Answer, we need a food for proper and development, for proper growth and development. There should be growth, okay? So you have to add this word here, proper growth and development. So we need a food for proper growth and development. Clear? Next, question number 2, which disease is caused due to lack of vitamin A? विटामिन A की कमी की वजह से कौन सा डिजीज होता है? That is night blindness. Night blindness is caused due to lack of vitamin A. Next, question number 3,
वाई डज आवर बॉडी नीड प्रोटीन, हमारी बॉडी को प्रोटीन क्यों चाहिए? आंसर, आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर रिपेयर ऑफ worn out cells and to build body tissue. Protein is needed for proper growth of bones and muscles. तो प्रोटीन हमारी बॉडी में जहाँ पे सेल्स डैमेज हो चुके हैं उन सेल्स को दोबारा से ग्रो बिल्ड करने के लिए या फिर उनको रिपेयर करने के लिए हमें ज़रूरत है प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे बोन्स और मसल्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। दिस इज़ वाई वी नीड प्रोटीन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इज व्हाट कॉजेज मलेरिया? मलेरिया किसकी वजह से होता है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड इट्स सोर्स इज मस्कीटो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज वाटर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी? हम सबको पता है कि वाटर जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, लेकिन क्यों? आंसर, water plays an important role in the proper digestion of food and growth of our body. Water helps to regulate our body temperature. तो वाटर क्या करता है? एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड एंड हमारी बॉडी के ग्रोथ में। ऑल्सो वाटर क्या करता है? हमारा जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन रखने में हमारी मदद करता है। दिस इज वाई वी नीड वाटर in our body. ठीक है, that is why water is so much essential for our body. Clear? Next, section C. Answer the following questions. First question, name 2 communicable disease caused by A given is bacteria. बैक्टीरिया से होने वाले 2 communicable disease के नाम बताने हैं। तो first one is typhoid and next is jaundice. These are the 2 diseases caused by bacteria. Next, virus, polio and dengue fever. Next is protozoa, that is malaria and dysentery. These are the 2 diseases caused by protozoa. ठीक है. Now let's move on to question number 2. How can you prevent diseases from spreading? Disease को फैलने से कैसे रोक सकते हैं? Answers, we have to take some precautionary measures. कौन से? First one क्या है? The house should be disinfected. It should have good ventilation and open space. Next क्या है? Drinking water should be clean and pure. Water purifiers or filters should be used to clean the water. तो पहला तो हमारा जो घर है वो डिसइंफेक्टेड होना चाहिए और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्लीन होना चाहिए और उसको प्योर करने के लिए प्योरीफायर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप या थर्ड वे आउट क्या है टू प्रिवेंट डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग? दैट इज द एरिया around your home should be neat and clean so that neither flies nor mosquitoes can breed there. तो हमारे आसपास का एरिया भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए जिसकी वजह से कोई मस्कीटो या फ्लाई वहाँ पे ग्रो ना कर सके। नेक्स्ट, वाटर शुड नॉट बी स्टेगनेंट इन puddles around the होम. ड्रेन शुड बी केप्ट कवर्ड. अब हमारे आसपास कहीं पे पानी जमा भी नहीं होना चाहिए और ना ही ड्रेन्स ओपन रहने चाहिए। वहाँ से भी क्या होता है, बहुत सारे जर्म्स और बहुत सारे फ्लाइज और मस्कीटोज वहाँ पे ब्रीड करेंगे, तो इसीलिए वो हमारे आसपास नहीं होना चाहिए सो दैट डिजीज शुड नॉट गेट स्प्रेड. ठीक है. सो दीज आर फ्यू वेज हाउ वी कैन प्रिवेंट डिजीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग. क्लियर? Next, question number 3. Name different nutrients present in food and describe at least one function of each. सारे nutrients जो हमारे खाने में present है उनका नाम बताना है और उन सब का एटलीस्ट एक एक फंक्शन भी बताना है. तो पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट हमें पता है दैट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन, जो हमने अभी पढ़ा कि प्रोटीन हेल्प्स फॉर रिपेयर ऑफ वोर्न आउट सेल्स एंड टू बिल्ड बॉडी टिश्यूज. नेक्स्ट हमारी बॉडी में और हमारे फूड में और क्या है? फैट्स हैं. फैट्स हमें क्या करती है? फैट्स गिव्स अस हीट एंड एनर्जी. ठीक है. नेक्स्ट जो है विटामिन एंड मिनरल. विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड दैट
our body needs to remain healthy. This spelling of our is our. Okay, correct it. So विटामिन्स और मिनरल्स क्या है, वो प्रोटेक्टिव फूड है जो कि हमारे बॉडी को चाहिए हेल्दी रहने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर जो है वो मेजर रोल प्ले करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड एंड ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी. एंड फाइनली वी ऑल्सो have roughage in our diet, and that makes the digestion smooth and easy. So these are few nutrients present in our food and their functions. Clear? Next, question number 4. Distinguish between communicable and non-communicable disease. तो कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल का पहला जो डिफरेंस है, दैट इज डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और कॉन्टेजिनियस डिजीजेस. ठीक है. उसका जो ऑपोजिट होगा कि जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन स्प्रेड नहीं हो रहा, पास नहीं हो रहा, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल. दैट इज डिजीजेस दैट कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर are called non-communicable or non-contagious diseases. ठीक है. Now communicable disease are caused by microorganisms, then certain flies or mosquitoes, or by contact with sick person through sneezing, coughing, or by using things of sick person. ठीक है. तो कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो कैसे फैलता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, या फ्लाइज या मस्कीटोज, या फिर किसी बीमार पर्सन के कांटेक्ट में आने से या उसकी चीज़ों को छूने से फैलता है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स in our food, by harmful substance present in the environment, or by bad habits such as smoking. So non-communicable disease के फैलने का क्या रीज़न है? वो कॉज होते हैं जब हमारे खाने में कोई न्यूट्रिएंट की कमी होती है, या हमारे एनवायरनमेंट में कोई हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, या फिर हमारी कोई बैड हैबिट होती है जैसे कि स्मोकिंग. इन सब की वजह से होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. सो लेट अस सी एग्जाम्पल्स इन बोथ द केसेस. तो एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन से हैं? जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, मीजल्स हो गए, चिकन पॉक्स हो गया. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है? नाइन ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, स्कर्वी, ये जो हैं ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल हैं. क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. क्लियर? Next, question number 5. List 4 causes of communicable diseases. हमें 4 रीज़न बताने हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के. ठीक है. तो फर्स्ट क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस हो गए, ये सब की वजह से. नेक्स्ट क्या है? वो ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू बाइट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, लाइक मलेरिया कॉज्ड बाय मस्कीटो बाइट. ठीक है. नेक्स्ट और क्या कॉज हो सकता है कि सम अदर्स आर कॉज्ड बाय इंजेस्टिंग कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, लाइक कॉलेरा गेट्स स्प्रेड फ्रॉम कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर कॉज्ड बाय फ्लाइज. तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे फूड एंड वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं, मतलब उसके अंदर कोई जर्म्स इंजेक्ट कर देते हैं. जैसे कि कॉलेरा जो है वो स्प्रेड होता है जब फूड और वाटर कंटेमिनेट हो जाते हैं बाय फ्लाइज. ठीक है. नेक्स्ट वे और नेक्स्ट कॉज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, वूफिंग कॉफ, देन ट्यूबरक्लोसिस या स्किन डिजीज, ये सब जो है वो कैसे कॉज करते हैं, कैसे होते हैं? बाय द कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन थ्रू स्नीजिंग, कॉफिंग, और बाय यूजिंग थिंग्स ऑफ सिक पर्सन. तो एक और तरीका क्या है कि कुछ डिजीज़ जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, मीजल्स हो गए, ये सब जो है वो किसी सिक पर्सन के कांटेक्ट पे आने से फैलता है, या फिर किसी के स्नीज करने से, कॉफ करने से भी फैलता है. ठीक है. सो दीज आर द 4 कॉजेज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन डी, दैट आस्क्ड फॉर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. फर्स्ट, प्रोटीनेटेड फूड. अब जिस खाने में प्रोटीन है वैसे 2 फूड के नाम बताने हैं. तो आंसर विल बी फिश एंड एग्स.
Next, carbohydrate food, that is bread and potatoes. Next, fatty food, cheese, milk. Communicable disease के नाम बताने हैं दो, that is common cold and typhoid. And non-communicable disease, scurvy and rickets. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन ई, टेक द ऑड वन आउट गिविंग रीजंस. पहला दिया गया है राइस, व्हीट, ऑरेंज एंड पोटैटो. वेरी क्लियरली ऑरेंज हियर इज द ऑड वन आउट. रीजन, ऑल अदर्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स वेयर एज ऑरेंज इज रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है. नेक्स्ट है फास्ट फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स. वेरी क्लियर ऑल्सो हियर ऑल्सो, दैट इज फास्ट फूड इज द ऑड वन आउट. क्यों? क्योंकि बाकी सब जो है, जो हमारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है फूड में न्यूट्रिएंट्स के, वो हैं, और जो फास्ट फूड है वो हमारे हेल्थ के लिए हेल्दी नहीं है. ठीक है. सो रीजन, ऑल अदर्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन अवर बॉडी वेयर एज फास्ट फूड इज अनहेल्दी फॉर अस. ठीक है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, बेरीबेरी, रिकेट्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड गॉइटर. अब ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ऑड वन आउट है. क्यों? क्योंकि बाकी सब जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है. कि ऑल अदर्स आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वेयर एज ट्यूबरक्लोसिस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक है. नेक्स्ट, फोर्थ इज रेस्ट, हाइजीन, एक्सरसाइज, लेट नाइट स्लीप. अब देखो, लेट नाइट स्लीप इज द ऑड वन आउट. रीजन क्या है? यहाँ पे 2 बार रीजन लिख दिया मैंने. दैट इज, रीजन क्या है? ऑल अदर्स आर रिक्वायर्ड टू बी फिट एंड हेल्दी वेयर एज लेट नाइट स्लीप विल हार्म अवर हेल्थ. बाकी सब जो है वो फैक्टर्स है जो कि हमें हेल्दी रहने में हमारी मदद करता है, लेकिन जो लेट नाइट स्लीप है वो हमें अनहेल्दी कर देगा, वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया, टैपवर्म, प्रोटोजोआ एंड वायरस. तो टैपवर्म जो है वो ऑड वन आउट है यहाँ पे. रीजन है इसका कि ऑल अदर्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज वेयर एज टैपवर्म कैन बी सीन विथ नेकेड आइज. तो ये बाकी जो है जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस, उन सबको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं. उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन टेपवर्म का साइज उनसे बड़ा होता है, तो दैट कैन बी सीन बाय अवर नेकेड आइज. इसीलिए टेपवर्म इज द ऑड वन आउट है. क्लियर? So students, that's marked the ending of this chapter. In our next video, we will discuss another chapter of class 5.